Hello students, I hope you all are fine and doing the chapter very well. As you know, we have discussed earlier topics sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, and I hope you have done it very well. Now let's discuss the next topic, that is cooperative societies. Let me discuss the meaning of cooperative society here. The word cooperative means working together and with others for a common purpose. Cooperative का मतलब है सब मिलके काम कर रहे हैं और सबका एक ही मकसद है. The cooperative society is a voluntary association of persons. इसमें सब जो भी मिलके काम कर रहे हैं voluntary जुड़ जाते हैं. To clear the meaning of cooperative society in detail, here are some key points related to the meaning of cooperative society. They are driven by the need to protect their economic interests in face of possible exploitation at the hands of middlemen. Middlemen की वजह से जो possible exploitation हो रही है उससे हमने अपने economic interest को protect करना है. Right, cooperative society compulsory required to be registered under Cooperative Society Act 1912. इस सोसाइटी एक्ट के अंदर इसको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है. नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सोसाइटी इज सिंपल इनफ. इसको सेटअप करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है. एंड एट मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 अडल्ट पर्सन्स टू फॉर्म सोसाइटी. सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए 10 अडल्ट. The capital of society is raised from its member through issue of shares. यहाँ पे भी जो कैपिटल जो इकट्ठा होती है फाइनेंस जो हम रेज करते हैं दैट इज थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स. शेयर्स को इशू करके फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है, कैपिटल रेज की जाती है. And the last point here is society acquires a distinct legal entity after its registration. जब इसकी registration हो जाती है तो इसकी अपनी एक separate legal entity होती है. So members के accept इसकी अपनी एक legal recognition होती है. Let's discuss features of cooperative society. First point is voluntary membership. Second is legal status, limited liability, democratic control, secularism, service motive, and the last point is finance. Let's discuss all these points in detail. First point is voluntary membership. The membership of cooperative society is voluntary. इसके जो उनकी अपनी विश है if they want to enter into the business or not. Membership is open to all irrespective of their religion, caste and gender. जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, किसी के धर्म से या कास्ट से कोई लेना देना नहीं है. They are free to join this business. A person is free to join the society and can also leave any time as per his desire. जब उसका मन चाहे वो उस सोसाइटी को छोड़ के जा सकता है. There cannot be any compulsion for him to join or quit society. Although procedurally a member required to serve just a notice before leaving society. उसको सोसाइटी छोड़ के जाने से पहले एक नोटिस देना पड़ेगा. बट एज यू नो दिस इज वॉलंटरी मेंबरशिप. तो उसकी अपनी विश है इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस और नॉट. अगर उसको नहीं कंफर्टेबल देन ही कैन लीव द सोसाइटी. वो बिजनेस को छोड़ के जा सकता है पर उसको एक नोटिस देना पड़ता है. द नेक्स्ट पॉइंट इज लीगल स्टेटस. रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपलसरी. क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है. तो जैसे ही इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है अपने मेंबर से डिस्टिंक्ट डिफरेंट. द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. सोसाइटी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, केस कर सकती है और उसके ऊपर भी केस हो सकता है. तो इसके ऊपर किसी मेंबर्स के एंट्री और एग्जिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, सोसाइटी को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता. As a result of being separate legal entity, it is not affected by entry or exit of its members. Here the next point is limited liability. Liability of members of cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them as capital. I want to clear you here. लिमिटेड लाइबिलिटी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो हमने इसके बाद डिस्कस करना है. जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इन दोनों की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है. लिमिटेड का मतलब जितना हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट करा है वी आर लाइबल ओनली अप टू दैट अमाउंट. बियॉन्ड दिस मेंबर इज नॉट लाइबल टू पे टू द सोसाइटी. अगर डेट्स बढ़ जाते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो वी आर मेंबर्स आर नॉट लाइबल टू पे दैट डेट. This defines maximum risk that a member can be asked to bear. What kind of risk the member has to bear? Only to the amount of capital contributed. Sole proprietorship and partnership में हमने क्या किया था? Liability unlimited रहती है. Unlimited का मतलब
कि अगर बिजनेस के लाइबिलिटीज आउटसाइड पार्टीज को देने वाली ज़्यादा हैं तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में, राइट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी, इन दोनों के केस में पर्सन ने, मेंबर्स ने जितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट करी है सिर्फ वहाँ तक वो लाइबल है, उससे बियॉन्ड वो नहीं लाइबल। यही पॉइंट इसका एडवांटेज भी बन जाएगा लिमिटेड लाइबिलिटी का। नाउ स्टिल वी आर डिस्कसिंग फीचर्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। द पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज म्यूचुअल हेल्प। इसका मेन मकसद क्या है? सबकी हेल्प करना और वेलफेयर है इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इट इज़ फॉर्म विद मोटिव ऑफ सर्विस टू इट्स मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना ही इसका मेन मोटिव है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट्स। प्रॉफिट अर्न करना इनका मकसद नहीं है। अगर कोई सरप्लस जनरेट होता है तो जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी है उनको डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट पॉइंट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, लिमिटेड लाइबिलिटी, stable existence, economy in operation, support from government. Now the first point in detail is ease of formation. Cooperative society can be started with minimum of 10 members. कम से कम 10 members इस बिजनेस को, सोसाइटी को स्टार्ट कर सकते हैं और इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। ये हमने फीचर्स में भी डिस्कस किया था कि ये उसका एडवांटेज है। मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। पर्सनल एसेट्स मेंबर्स के बिल्कुल सेफ हैं। बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए नहीं लाइबल। क्या लाइबल है? सिर्फ जितनी अमाउंट उन्होंने कंट्रीब्यूट की है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबल एग्जिस्टेंस। अगर किसी की डेथ हो जाती है मेंबर की, या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट, मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी बताया था, जब आउटसाइड लायबिलिटी उसकी बढ़ जाती हैं और उसके पास इतना फाइनेंस नहीं रहता, लाइक बैंकरप्ट हो जाता है या इनसेन मेंटली अपसेट हो जाता है, ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी को अफेक्ट नहीं करती। A society therefore operates unaffected by any change in membership. मेंबरशिप में कोई चेंज नहीं आता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किससे? मेंबर्स की डेथ से। अगर मेंबर्स बैंकरप्ट हो जाएं, इनसेन हो जाएं, ये सारी चीज़ें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती। Here the next point is equality in voting status. जो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट रहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जिसमें क्या आता है, सारे मेंबर्स जो डिसाइड करते हैं वही फाइनल डिसीजन लिया जाता है, तो वोटिंग स्टेटस भी इक्वल है। प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट गवर्न्स कोऑपरेटिव सोसाइटी irrespective of the amount of capital contributed by each member. हर मेंबर ने चाहे जितने मर्जी कंट्रीब्यूट करें, इफ वन हैज़ इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़, another has invested 50,000 and the next one has invested 30,000, it does not matter, each and every person is having equal voting rights irrespective of the capital contributed. Here the next point is economy in operations. Members generally offer honorary services to the society as the focus is on elimination of middlemen. I just want to clear you here. इनका मेन मकसद क्या होता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड्स बाय करके कंज्यूमर को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो बीच में जितने भी मिडलमैन हैं वो मिडलमैन की कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। तो मेन मकसद इनका क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना, मिडलमैन को एलिमिनेट करके डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को सर्विस प्रोवाइड करना। तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. Cooperative society exemplifies the idea of democracy and hence support from government in form of low taxes, subsidies and low interest rates on loan. क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, यानी कि इसमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे जितने भी मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी विशेस के अकॉर्डिंग ही लिए जाते हैं। तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है, इनको टैक्स बहुत कम चार्ज करती है और इनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, और जो भी लोन वगैरह भी अगर देती है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। तो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट की हेल्प भी मिलती रहती है। नाउ देयर आर सम लिमिटेशंस एज वेल. द पॉइंट्स आर फॉर लिमिटेशन: लिमिटेड रिसोर्सेज, मैनेजमेंट इज वेरी इनएफिशिएंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, government control, differences of opinion. Let's discuss all these points in detail. Here the first point is limited resources. Resources of cooperative societies consist of capital contribution of members with limited means. इसके जो members हैं उनके पास इतने ज़्यादा resources नहीं होते, तो जो वो capital contribute करते हैं वो उनके पास इतने ज़्यादा means नहीं होते. Low rate of dividend offered on investment. हम इस ऑर्गेनाइजेशन में, सोसाइटी में जो अपने मेंबर्स को डिविडेंड ऑफर करते हैं वो डिविडेंड बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कैपिटल भी मेंबर से अट्रैक्ट नहीं कर पाते. दिस इज़ द बिगेस्ट हर्डल.
Low rate of dividend offered on investment also act as hurdle in attracting more capital from other members. दूसरे मेंबर से फाइनेंस इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिविडेंड को कम मिलता है. नेक्स्ट पॉइंट इज इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट. द मेंबर्स हु ऑफर ऑनररी सर्विसेज ऑन वॉलंटरी बेसिस, जो मेंबर्स जिसमें वॉलंटरी बेसिस पे अपनी सर्विसेज देते हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते. आर जर्नली नॉट प्रोफेशनली इक्विप टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शंस इफेक्टिवली. वो मैनेजमेंट के फंक्शंस को इतने प्रोफेशनली मैनेज नहीं करते. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर अनएबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स. इन सोसाइटीज़ के पास इतना रिसोर्स नहीं होता कि वो एक्सपर्ट मैनेजर्स को एम्प्लॉय कर सकें क्योंकि इनकी कैपेसिटी, हाईएस्ट सैलरी पे करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ सीक्रेसी. As a result of open discussion and meetings of members as well as disclosure obligations as per Cooperative Society Act, it is difficult to maintain secrecy about the operations of cooperative society. इनकी मीटिंग्स बहुत ही ओपन डिस्कशन होती हैं, तो जो भी वो मीटिंग में डिस्कस करते हैं सब कुछ डिस्क्लोज करते हैं, तो जिसकी वजह से वो सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते. नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट कंट्रोल. इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेजेस ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिविलेजेस यानी कि बेनिफिट ऑफर करती है, तो उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स, इंटरफेरेंस इन फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन exercised by state cooperative department also negatively affects its freedom of operations. क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं तो डेफिनेटली वो इसकी डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर करती है, तो जिसकी वजह से इसकी फ्रीडम नेगेटिवली अफेक्ट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. Internal quarrels arising as a result of contrary viewpoints may lead to difficult in decision making. हर किसी का व्यू पॉइंट अलग अलग होगा, तो अगर कोई पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा तो डेफिनेटली अदर मेंबर्स में टेक अ बैक सीट. इफ पर्सनल गेन इज गिवन प्रेफरेंस बाय सर्टन अदर मेंबर्स, बाकी सारे मेंबर्स भी उसके पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वही डिसीजन को लेने की कोशिश करेंगे, तो उस केस में बाकी मेंबर्स पीछे हट जाते हैं. तो यहाँ पे ओपिनियन में जो डिफरेंसेस आते हैं, दिस इज ऑल्सो द बिगेस्ट डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. हियर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. First is consumer cooperative, second producer cooperative, third marketing cooperative societies, farmers cooperative societies, credit cooperative societies, and the last one is cooperative housing societies. Let me explain you all this in detail. Here the first point is consumer cooperative society. इस सोसाइटी का मेन मकसद क्या है? वो डायरेक्टली होल सेलर से गुड्स परचेज करती है और अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और जो भी मिडिल मैन है वो एलिमिनेट हो जाता है और जो प्रॉफिट है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. इन केस ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है कि वो रॉ मटेरियल और अदर इक्विपमेंट्स मेंबर्स को प्रोवाइड करते हैं और अपनी आउटपुट को खुद ही बाय कर लेते हैं और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. जो भी प्रॉफिट होता है वो सारे जितना भी गुड्स प्रोड्यूस करने में जिसने जो कंट्रीब्यूट किए हैं उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. नेक्स्ट आपका है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी. इन दिस केस इट पूल्स आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ने जो भी प्रोडक्शन करी हुई है, उनके अपने अपने जो भी गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं वो मार्केटिंग का फंक्शन इसमें परफॉर्म करते हैं. एंड परफॉर्म्स मार्केटिंग फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग टू सेल द आउटपुट एट बेस्ट पॉसिबल प्राइस. इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको मार्केट में अच्छा प्राइस मिल जाए. ये मार्केटिंग एफर्ट सारे कलेक्टिवली कर लेते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ले जाता है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये सोसाइटी सारी बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती हैं कल्टीवेशन के लिए. This helps not only in improving yields and returns to the farmers but also solve the problems associated with farming on fragmented land holdings. जो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स जिन फार्मर्स के पास है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं, उनको इम्प्रूव करती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी. ये जो सोसाइटी है सारे मेंबर्स को लोन प्रोवाइड करती है कलेक्टिवली, ह्यूज कैपिटल अमाउंट प्रोवाइड करती है और जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम. And the last point here is cooperative housing society. These society construct flats or provide plots to the member on which members themselves can construct houses as per their choice. ये उनको अपने जितने भी members हैं उनको flats provide करती है, उनको construct करके देती है या फिर उनको houses provide कर देती है, वो अपने हिसाब से उसको construct भी कर देते हैं.